السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر جناب جس طرح سے ہمارے ڈرائنگ روم میں یہ مہمان شخصیات موجود تھیں اور آج بڑے زبردست جو پکوان ہیں اور جن کی خوشبو سے پورا سیٹ جو ہے وہ مہک رہا ہے اور بہت ہی مزیدار سی خوشبو، اور عید الاضحیٰ کے موقع پر تو ویسے بھی بڑے مزے کے پکوان بنائے جاتے ہیں اور باربیکیو کا تو مزہ ہی کچھ اور ہے۔ تو ماموں کباب کی جانب سے یہ جو تواضع کی گئی ہے، آپ لوگ لیں نا، بسم اللہ کریں، آپ بھی لیں۔ تو ماموں کباب کی طرف سے یہ تواضع کی گئی ہے۔ ARYQTV کے مہمان جو ہمارے پاس یہاں موجود ہیں، جناب جتنی خوبصورت خوشبو ہوتی ہے، جتنی مزیدار سی خوشبو آ رہی تھی اور ٹیسٹ بھی اس کا بہت زبردست ہے، اتنے اچھے گلے ہوئے ہیں اور خاص طور پر یہ پوریاں اتنی گرم بڑا مزہ آ رہا تھا۔ اور میں ابھی وقفے میں ہم یہ بھی بات کر رہے تھے، امبر سے بھی، نورین سے بھی، ڈاکٹر صاحبہ بھی یہی فرما رہی تھی کہ جب تک ہم QTV پر نہ آئیں تو عید کا مزہ جو ہے وہ پھیکا سا رہتا ہے، اور جب QTV پر آ کر ہم عید کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ بالکل، دیکھیں نا گھر میں بھاگم دوڑی مچی ہوتی ہے، اس کو سرو کرنا، اس کو یوں کرنا، یہاں بنایا بندہ انجوائے بھی کرتا ہے، تھوڑا گھر سے دور ہو کر اپنی سہیلیوں میں ہنس بول کر اور پھر اتنے سکون سے بیٹھ کے کھا لیتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ اس لیے سب سے بڑی بات یہ ہے نا کہ ماموں کباب بنا دیتے ہیں، بقرعید میں 4 چاند لگا دیے، کیا مطلب مسالے والے گرم۔ آپ کو فیل نہیں ہوتا ایسا، جیسے نام ایسا ہے نا، ماں جیسے کھانوں کی تھوڑی بہت ہے پھر شباہت۔ ماں تو الگ بات ہے، اور اگر ماموں کو پورا ماموں بھی کہہ دیا جائے تو وہ والی محبت، ماموں والی محبت جو خاص طور پر ننیال میں ہوتی ہے، اور نانیوں کے گھر ہم جاتے ہیں جب، بالکل ایک دعوت جو ہوتی ہے جو نانی کے گھر کی ہوتی ہے اس کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے نا امبر؟ کیونکہ ہم لوگ جب جس طرح بھی زرمینہ، آپ نے کتنے کباب کھا لیے زرمینہ؟ میرے کباب پہ کیوں، میں نے ایک ہی لیا، وہ مجھ سے کھایا نہیں، ایک نہیں تھا، یہ ہماری گفتگو میں 4 کھا چکی ہیں مجھے نا۔ کہیں آپ یہ نہ سمجھے کہ وہ ہم سے باتیں کری لیکن نظر آپ کی طرف، نظر میری سب پر ہے، جو کیمرے کی آنکھ سب دیکھ رہی ہوتی ہے اس طرح سے میں بالکل نہیں آپ کھائیں، اس لیے کہ واقعی یہ مزیدار ہے، مسالہ بہت اچھا ہے، مرچیں مناسب ہے، یعنی کہ چٹپٹا سا ہے، ایسا پھیکا بھی نہیں ہے اور اتنا زیادہ تیز بھی نہیں ہے کہ بہت زیادہ جو ہے مرچیں لگ رہی ہوں۔ میرے لیے تو مزے کا ہے، اچھا ہے نا؟ اور یہ کھانا گرم نہ ہونا تو مزے کی بات ہاں بالکل، یہ گرم ہے تو ڈائریکٹلی اچھے لگ رہے ہیں۔ امبر میں یہ چاہ رہی تھی، اور زرمینہ ہم لوگ یہاں پہ پروگرام کر رہے ہیں، میں نے سمجھا گھر پہ گلاب جامن بھی آج ہے نا، تم نے کہا گلاب جامن سے مائلہ سے پوچھیں گے، ویسے مائلہ کیونکہ اب تک کافی پروگرام میں بہت زیادہ کم بولی ہے، میں چاہ رہی ہوں مائلہ کوئی عید الاضحیٰ کے حوالے سے ایسا واقعہ ہو، گائے، بکری، بکرا، کوئی بھی ایسی چیز جو ابھی تک یاد ہو۔ میں بتاؤں، بچپن کا بچپن ہی آپ کو؟ بچپن ہی ابھی کچھ ٹائم پہلے کی بات ہے، تو نانی کے گھر گئے تھے، تو عید کا دن تھا، دوسرا دن تھا عید کا، تو گائے جو ہے نا میں لے کر، بھائی اور سارے کزنس کے ساتھ ہی تھی، تب چھوٹی تھی، تو گائے لے کر ہم جا رہے ہیں اس کو ٹہلانے نا کہ اب بس قربانی ہوگی، تو میرے ہاتھ سے نا رسی چھوٹ گئی اور گائے جو ہے آگے بھاگ گئی، اور میں عید کے نئے ڈریس میں تھی، تو اب میں گائے کی ٹینشن میں کہ گائے بھاگ گئی، میں اس کے پیچھے بھاگ رہی ہوں۔ ڈری نہیں آپ؟ مجھے ڈر تو لگ رہا تھا، لیکن میں نے کہا رسی چھوٹ گئی، اب سب کہیں گے گائے بھگا دی، تو میں بھی اس کے پیچھے بھاگی، تو اس چکر میں میرا جو ہے نیو عید کا ڈریس بھی خراب ہو گیا۔ لیکن چلے گائے تو آگے جا کے کزنس نے اور سب نے پکڑ لی۔ اب یہ بھی تو دیکھیں گائے پکڑی بھی کس نے تھی؟ ہاں نہیں وہ بتا دیا کہ کزن نے پکڑ لی، کس کے ہاتھ میں تھی، تو چھڑا کے تو بھاگنا ہی تھا اس کو۔ پھر ڈانٹ پڑی تھی گھر میں؟ نہیں، ڈانٹ نہیں پڑی تھی، تو سب بڑوں کی پڑی ہوگی، وہ جو کزنس تھے کہ بھائی بچے، نانی کے گھر میں کہاں ڈانٹ پڑتی ہے۔ صحیح۔ اچھا یہ تھا بس، آپ ایک تو جو ابھی تک مجھے یاد ہے نا کہ بس میرا عید کا ڈریس بھی خراب ہو گیا تھا نا، اس لیے یاد رکھیے۔ پھر اس کے بعد وہ پہنا آپ نے صحیح کر کے یا پھر آپ کو دے دیا کسی کو؟ نہیں، بس پھر وہ رکھا ہی رہ گیا، وہ ایسا خراب ہوا تھا نا، پھر وہ پہننے والا نہیں تھا۔ آپ بتائیں نا اپنے بچپن کی کوئی یاد، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا واقعہ آپ ہمیں بتائیں۔
देखिए कुर्बानी का जानवर तो जब वालिद मोहतरम जिंदा थे तो वो लाते थे, फिर भाई लाते थे, बांध देते थे, हम छुप छुप कर देखते थे, अरे कितना मोटा जानवर आएगा, सुबह हम इसका गोश्त खाएंगे, बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन जब कुर्बानी जब होती थी, उसे कसाई ज़िबा करता था जानवर को, तो बड़ा डरते भी थे, अम्मी के पीछे छुप जाया करते थे कि अरे इतना खून निकल रहा है। लेकिन उस वक्त भी मतलब है कि हमारे वालिदैन भी हमें ये कहते थे कि ये सुन्नत इब्राहिमी है और हमें जितनी इस्तिताअत के मुताबिक हर साल कुर्बानी करनी चाहिए। फिर वालिदैन जो थे ये भी बताते थे कि जानवरों का भी ख्याल रखना चाहिए, जानवरों का ख्याल रखना भी इबादत है और ये बगैर लफ्ज़ों के दुआ देते हैं। सही। अच्छा, आप लोगों में से किसी ने बचपन में जो जानवर जब हम लेकर आते हैं, जो वालिदैन, बहन भाई, बड़े भाई अगर होते हैं, नाम रखे हैं जानवरों के? अक्सर बच्चे नाम रख देते हैं ना उसके जानवरों के, और पहले ही दिन से, मेरा तो बेटा पहले आने से पहले ही वो नाम सोच रहा था मम्मा क्या नाम रखेंगे, ऐसा ज़मीना को नाम याद आ रहा है। आपको मेरे दिल की बात कैसे पता लग जाती है? हाँ, रानी सुना है मेरे नाम, अल्लाह अकबर। तो काव के ऊपर लिख रहे होते हैं मेहंदी से। आपने रखा नाम? रानी। रानी, सही है। फिर उसकी कुर्बानी पे आप रोते भी है ना? बहुत बच्चे है ना, बहुत रोते हैं। हसन तो हमारे ऐसे हैं कि वो इतना ज़्यादा वो अटैच हो जाते हैं और उसके बाद ये होता है कि बस कुर्बान नहीं करें, तो मैं उनको फिर यही समझाती हूँ कि बेटा यही तो कुर्बानी है, असल कुर्बानी तो यही है। उससे इतनी अटैचमेंट हो जाए और फिर उस चीज़ को कुर्बान करें, चीज़ तो यही है। सही बात है। और जब हम ज़ाहिर है कुछ दिन पहले लेकर आते हैं, अब तो शायद वो टाइम इतना ज़्यादा नहीं है, लोगों के पास जगह नहीं होती, वक्त नहीं होता, तो जल्दी से लोग ऐसे टाइम पर लाते हैं कि कुर्बानी। पहले टाइम में मुझे लगता है कि पहले ज़्यादा टाइम हम स्पेंड करते थे जानवरों के साथ, है ना? असल में अब जो कुछ टाइम से तो इतनी ज़्यादा गर्मी में ये आ रही है ईद के, वो फिर कुछ खतरा भी होता है जी, जानवर बीमार ना हो जाए, ये एक मसले मसाइल भी होते हैं। फिर ये कि अब जाहिर बात है मसरूफियात पहले से मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं लोगों की। सही। फिर घर का जो सिस्टम है वो भी चेंज हो गया। पहले सहन होते थे, अब सहन तकरीबन घरों से ख़त्म हो चुके हैं, तो वो ये कुछ बहुत सारी वजूहात है जिनकी वजह से होता है। हाँ, एक माहौल भी होता था ना, सारी रात लोग जागते होते थे। अब कहाँ वो इतना वक्त भी नहीं है, और शायद लोगों के दिलों में ना कम हो गई, एक दूसरे के लिए ख्याल रखना ये कम हो गया है ना। असल चीज़ यही है। तो अल्लाह करे कि वो टाइम दोबारा। अच्छा, एक वक्त ऐसा भी था जब सर्दियों में आती थी ना ईद, उस वक्त बड़ा होता था कि वो जो स्वेटर पहना देते थे ना घर के, निकाल के जानवर, मेहंदियाँ भी लगाते थे, फिर स्वेटर पहनाना, वो एक बड़ा एक मजेदार सा एक सिस्टम होता था। चादर पहना दिया करते थे, हाँ, बिल्कुल, उसको कवर कर देना, पुराने ब्लैंकेट डाल दिए, है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मुझे किसी ने बताया था अक्सर बच्चे जो ना शरारत में कोल्ड ड्रिंक पिला देते हैं जानवरों को, ऐसा किसी ने सुना है? किसी ने? मैंने देखा था एक दफा जाते हुए पिलाते हैं। किसको? किसी बच्चे को पिलाते हुए, बकरे को, समटाइम्स कुछ बकरी थी आई थिंक सो, कोल्ड ड्रिंक पिला। लेकिन बेटा वो मिठाइयाँ बहुत खिलाते हैं। अच्छा, मिठाई शौक से खाते हैं? हाँ माशाल्लाह, बहुत शौक से, बल्कि बाकायदा जानवर आने से पहले हमारे घर में जो है वो मिठाइयों में से पार हो रही होती हैं, वो फ्रीज हो रही होती हैं। अच्छा। मम्मा ये उसके लिए, मम्मा ये उसके लिए। तभी मैं खत्म हो जाती है तो फिर और लाया जाए, स्पेशली उसको मिठाई खिलाने के लिए लाई जाती है। तो वो नुकसानदेह नहीं होती जानवर के लिए? अभी तक तो मैंने इतने सालों में देखा है कि बिल्कुल भी नहीं हुआ। बड़े चटखारे लेके और बड़े मजे से जब माशाल्लाह ज़रमीना इतनी सारी मिठाई खा सकते, कुछ नुकसान ही नहीं होता माशाल्लाह से, सब हजम हो जाता है। ये कैसे होता है? हमें तो सब लग जाता है। अंबर ने अच्छी बात की है ना कि जानवर का भी ख्याल रखा जाता है, क्योंकि देखिए यही तो कनेक्टिविटी है जो जानवर के साथ हमारी डेवलप हो जाती है, और फिर उसी से जब हमें कनेक्शन डेवलप हो जाता है, उसका ख्याल रखना, उसको चारा डालना। और समटाइम्स कुछ घरों में ऐसा भी देखा गया है कि बच्चे परमिशन मिलने पर अपनी चेयर भी वहाँ लगा लेते हैं जानवर के पास। और फिर बच्चों को आजकल ये बताना फ़ी ज़माना बहुत ज़रूरी है कि यही तो अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी को पाने का एक खूबसूरत लम्हा है कि जिस चीज़ से आपको ज़्यादा मोहब्बत है आप सेक्रीफाइस उसके लिए करें। जब आप उसको अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं तो इसी से तो अल्लाह की रज़ा मिलती है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करे हम पर करम फरमाए कि हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस आजमाइश को और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के डिटरमिन रहने को, साबित कदम रहने को, उसको हम अंडरस्टैंड कर सकें, अपने बच्चों को सिखा सकें, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को, और ईगो को भी कुर्बान करना चाहिए। और माशाल्लाह ज़रमीना, ये जो ख़ास तौर पर ईद कुर्बा है ना, इसका जो इसकी जो रूह है, बेसिकली कुर्बानी की जो रूह है, इतना अच्छा लगता है। हर साल ये बच्चों को बताए जाते हैं और ये वाकया अजबर हो गया माशाल्लाह। हर घर में हर बच्चे को जब ये कुर्बानी के दिन आते हैं बताया जाता है, पूरी एक स्टोरी की तरह सुनाई जाती है और बहुत अच्छा लगता है ना। तो ये रूह डालनी चाहिए बच्चों के अंदर। दोनों बच्चों
में भी यही है, शुरू से अगर आप वो जब बोलना शुरू हुए हाँ। थे तब भी वो ये किस्सा सुनाते थे। बिल्कुल। दरीतम या अजान, जबकि दरीतम थोड़ा डरती हैं, लेकिन फिर वो जो है ना, वो बचपन में हम खेलते थे ना बीच की बिल्ली, वो भाई के साथ, वो भाई जो है वो जानवर के पास ही बैठे रहते हैं। फिर भाई ऑर्डर्स करते हैं, फिर वो जो बहन है वो फिर दौड़ती हैं फौरन दरीतम, मम्मा आप मिठाई दे दें, मम्मा आप उसका चारा बना दें, मम्मा भाई कह रहे हैं पानी ला दें। वो मतलब माशाल्लाह दोनों को फिर हम लगा के रखते हैं, वो दोनों अटैचमेंट जो है ना दोनों की माशाल्लाह से इतनी एनर्जी आ जाती है, पूरा दिन भी लगे रहने के बाद भी थकन नहीं होती है बच्चों को। बिल्कुल नहीं होती। अभी देखें करना पड़ता है, लेट जाओ, कुछ खा लो, कुछ ये अभी देखें इस कदर गर्मी है, गर्मी का मौसम भी है, लेकिन ये कि बच्चों को कोई परेशानी नहीं है, बच्चों को क्या, इवन बड़ों को भी नहीं। सुबह भी अपने वक्त से पहले आँख खुल जाती है, सोते ही इतनी मुश्किल से नींद नहीं आती है। मैं वही कहूँ, अगर रात में अगर लेट अगर बंदा बच्चा सोता है तो सुबह देर से भी आँख खुलती है, लेकिन नहीं भाई, वो आँख तो उस वक्त भी जल्दी खुल जाती है। हमारे जागने से पहले जागे हुए होते हैं। ऐसा ही है। लेकिन इस मौके पे ज़ैनब अपना पेट समझ के खाना चाहिए, मैं समझती हूँ। जी, मैं तो इसीलिए बात ज्यादा कर रही हूँ, लेकिन आप तो खामोशी। अपना पेट समझ के खाना चाहिए, और अगर कोई स्टमक इशू हो भी जाता है, अपना हमारे पैसे थोड़ी नहीं है, आप खाएं। तो उसके लिए एक छोटी सी टिप भी है कि अगर आपको एसिडिटी फील हो रही है, समहाउ हो जाता है, हाँ। क्योंकि मुख्तलिफ वैरायटी आ गई है डिशेस के अंदर, बारबेक्यू के अंदर डिफरेंट वैरायटीज़ लोग उसका एहतमाम कर रहे होते हैं। तो जब आप खाना खा चुकते हैं, अगर आपको एसिडिटी स्टमक में या पेन फील होता है, तो रात को जब आप सोने वाले हों उस वक्त सब्ज़ इलायची को आप उसको चबाकर खा लें और उसके बाद पानी पी लें और सो जाएं, उससे फिर एसिडिटी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती है। अच्छा, जबरदस्त भाई, बहुत ज़बरदस्त बात है। इतनी ज़बरदस्त इन्होंने टोटके भी बताए, टोटके वाली आंटी भी हैं, इनको आज कह सकते हैं हम, हकीम भी हैं, बड़े अच्छे नुस्खे बताती हैं, हर चीज़ का माशाल्लाह हर फन मौला है ज़मीना। तो इसलिए आजमा के बताइए कि नीम नहीं, माइला आप बताइए। इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकती हूँ बिल्कुल भी। बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। तो आपको वैसे भी सिर्फ बकरा ईद पे ही नहीं, वैसे भी अगर नॉर्मली आप रूटीन में इसको शामिल कर लें तो अच्छा है। बिल्कुल। अच्छा माइला, ब्रेक लेना है आपने, और आपका कैमरा है वो तरन्नुम में ब्रेक लेना है, जैसे कि अभी बहुत प्यारा ब्रेक लिया था अंबर ने, बहुत ज़बरदस्त। जी जी माइला। ईद कुर्बान शान ईद आप देख रहे हैं, ARYQ TV की इस स्क्रीन्स पर मिलते हैं हम आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। अरे वाह भाई, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, वक्फे के बाद एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हैं। आप देख रहे हैं ईद उल अज़हा की ये खुसूसी ट्रांसमिशन ARYQ TV पर, और जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है उनको हम कहते हैं ईद मुबारक। और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मज़ेदार सी गुफ्तगू रही आज भी मेहमान शख्सियात के साथ हमारी। जिस तरह से हम बार बार ये बात कर रहे हैं ना कि ये शख्सियात अपने घर में, अपने घर के ड्राइंग रूम में किस तरह से मेहमानों को, जब मेहमान इनके पास आते हैं तो कैसे तवाज़ो करती हैं, कैसे उनका इंतज़ार किया जाता है और उसके खातिर तवाज़ो किस तरह से की जाती है। बहुत सारी बातें हुई आज, ख़ास तौर पर इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपने ये जाना इन शख्सियात की जो पर्सनल लाइफ है। ज़ाहिर है हम देख रहे होते हैं नातख़्वानी के हवाले से, या जैसे कि डॉक्टर साहिबा हैं, इनको हमने स्क्रीन पर देखा, बहुत प्यारा बोलती भी हैं, बहुत प्यारी शख्सियत भी है, लेकिन ज़ाहिर है जो चीज़ें हमने यहाँ आज जानी हैं वो कम ही लोगों को मालूम हुआ करती हैं। तो जनाब, वक्त कैसे गुजर गया बिल्कुल नहीं पता चला, बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। डॉक्टर साहिबा, ये ईद ख़ास तौर पर ज़ाहिर है हमने एक फ़लसफ़ा क़ुरबानी के हवाले से भी आपने इब्तिदा में भी बात की थी। जाते जाते मैं चाहूँगी कि कोई मैसेज हमारी जो देखने वाली बहनें हैं, क्या कहेंगे आप इनको? देखिए कि अल्लाह की अताअत जो है वो हकीकी बंदगी है। बेशक हमें ज़िंदगी में हर काम अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए करना चाहिए कि हमारा जीना मरना, हमारी ज़िंदगी का हर अमल अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के मुताबिक होना चाहिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आँखों की नमी और दिल की नरमी अल्लाह की तरफ से अता करदा रहमत है, और जो लोग नर्म दिल लोग होते हैं वो हमेशा दूसरों को माफ़ कर देते हैं। तो आइए ये सलीक़ा भी सीखें इस पुरमसरत मौके पर कि ख़ुद भी माफ़ी मांग लें
और तहे दिल से दूसरों के कसूर को भी माफ़ करते हैं। बेशक। और ये जो कुर्बानी की ईद है बेसिकली हमें यही पैगाम देती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खातिर अपनी हर चीज़ कुर्बान कर देने पर बंदा मोमिन तैयार रहता है। नौरीन, आप क्या मैसेज देंगी हमारी देखने वाली जो बहनें हैं, जो बच्चियां हैं ख़ास तौर पर आपको बहुत पसंद करती हैं, सुनती हैं, क्या मैसेज देंगी? अच्छा, मैंने मैसेज तो दूसरा सोच के रखा था, लेकिन हाँ। अगर आप मुझसे ये पूछ रही हैं तो फिर मैं अपना मैसेज चेंज कर देती हूँ। लेकिन मेरा मैसेज ये था नहीं, कि बिल्कुल, आप इस जो दफ़ा भी जो है ना, मैंने बहुत नोट किया, और इसमें कोई बुरा मानने की भी बात नहीं है। गोश्त की तकसीम के हवाले से एक छोटी सी बात कहूँगी कि जिनके यहाँ कुर्बानी होती है आप उनके यहाँ खुदारा नहीं भेजें। आप ऐसे लोग बहुत और इस महंगाई के दौर में बहुत ऐसे घर हैं जो पहले करते थे, साहिब हैसियत थे, अब वो नहीं कर पाते। सही कह रही तो आप उनको देखें, अब ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद समझ में नज़र भी आता है कि इनके घर में नहीं हुई तो आप इनके यहाँ दें। मेरे घर में इस दफ़ा बहुत से लोग गोश्त लेकर आए, मैंने उनको यही समझाया कि हमारे घर हुई है तो जिनके घर हुई भी होती है वहाँ गोश्त नहीं दें, यानी कि जिनके घर नहीं हुई उनको बिल्कुल ऐसा। और उसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है, अगर आप उसको वापस भी लौटा रहे हैं तो जिनको लौटा रहे हैं वो बुरा नहीं माने इस बात हम कभी कभी वो ताल्लुकात निभाने वाली, रिश्ते निभाने वाली बात मैं हो ये जाती जो है, रस्म उसकी निभा वजह देते से, हैं ना कि नहीं जी बहन का घर है, जी भाई का घर नाराज ना हो है, जाए ये कोई। ससुराल है, नहीं ऐसा नहीं बिल्कुल देखना सही। चाहिए। जी अंबर, मैं ये कहूँगी कि मुझे कुछ अरसे से ऐसा लगने लगा है कि शायद कहीं ना कहीं हमारे रिश्तों में भी और जिस तरह हम कुर्बानी करते हैं उसमें भी इखलास की बड़ी कमी आ गई है। अल्लाह अकबर। तो चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो कुर्बानी हो, या कोई भी चीज़ हो, उसमें इखलास अपने अंदर लाइए। क्योंकि इखलास अगर होगा ना तो फिर ना कोई रिश्ता नाकाम होता है और ना वो जो कुर्बानी आपने की है वो अल्लाह की बारगाह में रद्द नहीं हो सकती। नियत ही जाती है ना हमारी तो, और नियतों के हाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानता है। जी ज़रमीना, बहुत अच्छा मैसेज दिया अंबर आपने। इसी से लिंक अप करते हुए मैं ये कहना चाहूँगी कि हम कुर्बानी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कुर्बानी के ट्रू एसेंस को, उसकी असल रूह को अपने अंदर बेदार करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक भी है, उसका मफ़हूम भी है कि हमें अपने बच्चों को इवन और ख़ुद को भी ऑब्वियसली ये सीखने की ज़रूरत है फ़ी ज़माना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, उनके अहले बैत से मोहब्बत, उनका मकाम, और वो यकीनन जब हम सीख लेते हैं तो अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी। यू नो, व्हेन आई वाज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट तो मैं इतना स्पिरिचुअलिटी से या अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, उनकी जो तालीमात है सही तौर से कैसे अमल करना है, तो मैं अपने मुर्शिद मखदूम महमूद मस्तवार कलंदर से मिली। और वहाँ से जब आप किसी सोहबत में बैठ जाते हैं, अ मैन इज़ नॉन बाय द कंपनी ही कीप्स, इंसान अपनी सोहबत से पहचाना जाता है। जब रफ्ता रफ्ता वो आगे बढ़ता है इन प्यारी तालीमात से, अल्लाह वालों की प्यारी तालीमात से इंसान का जो दिल है उस जानिब क्यों अट्रैक्ट होता है, क्योंकि वो अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से उनके किरदार रंगे होते हैं, उनके दिल इश्क़ इलाही से मामूर होते हैं। तो वहाँ से फिर रफ्ता रफ्ता इंसान को वो रंग अता होना शुरू हो जाता है जिसको कहा जाता है सिबगतुल्लाह, अल्लाह ताला का रंग। और यकीनन जिसको अता हो जाए तो फिर उससे और बेहतर रंग क्या हो सकता है। तो उनसे मैंने यही सीखा कि जब अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम मोहब्बत करते हैं, उनके बन जाना सीख जाते हैं, तो फिर ज़माना हमारा बनता है। तो अभी मकाम फ़क्र के निशान बाकी हैं, अभी मोहब्बत के सारे जहां बाकी हैं, कायम है अभी तक हुकूमत रसूल की, अभी आले रसूल के गुलिस्तान बाकी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी माइला, मैं यही कहना चाहूँगी, सबसे पहले तो तमाम देखने वालों को मेरी जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। और ईद का ये दिन, ईद कुर्बान, हमें यही सबक देती है कि हम सब्र, शुक्र और कुर्बानी के जज्बे को फ़रोग़ देने का नाम है। अल्लाह ताला के करीब हमें ये करता है। तो कोशिश करें इस ईद पर अपनी खुशियाँ उन लोगों के साथ शेयर करें जिनके कम वसाइल हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, हकदार हैं, तो उन तक जो है अपनी कुर्बानियों का जो गोश्त है वो लाजमी पहुँचाएँ, ताकि वो भी ईद की खुशियों का लुत्फ़ उस तरह उठा सकें जिस तरह हम उठाते हैं। तो अल्लाह करीम हम सब की कुर्बानियों को और दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन आमीन आमीन। और जिस तरह से जनाब आज ये नशिस्त यहाँ पर इख्तिताम पजीर हुआ चाहती है, अब जिस तरह से हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं, ये किसी की नाराज़गी का सबब अगर कोई बात बनती है तो आप सबकी खिदमत में मैं बिल्कुल माज़रत खा हूँ। हमारा मकसद बिल्कुल ये नहीं होता बस यहाँ बैठकर थोड़ी देर के लिए अपने सारे गम भुला देना, अपनी हर जो परेशानी है उसको एक तरफ रख देना। ज़ाहिर है इनके घरों में भी मसाइल हैं, हमारे घर में भी होते हैं, और जिस तरह हम देख रहे होते हैं कि लोग परेशानियों में मुब्तला हैं, लेकिन कुछ देर के लिए, कुछ लम्हे फरागत के, मोहब्बत के, सुकून के,
کہ ہم یہاں گزارتے ہیں اور یہ توفیق اللہ رب العزت کی عطا سے ہی ہمیں ملی ہے اور ARYQ-TV نے ہمیں یہ پلیٹ فارم عطا کیا ہے. تو بس کسی کی دل آزاری اگر دوران گفتگو ہوئی تو ہم معذرت چاہتے ہیں. اور جس طرح سے آپ لوگوں کے لیے یہ خاص طور پر ARYQ-TV کی طرف سے جناب گفٹ ہیمپر بھی ہیں جو آپ کے ساتھ جائیں گے. آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحبہ آپ تشریف لائیں, یہ سب سے اچھی بات ہے. نورین آپ تشریف لائیں. امبر آپ کی آمد کا بہت شکریہ. زرمینہ آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. اور مائلہ آپ تشریف لائی ہیں. ماشاء اللہ بہت اچھا لگتا ہے, اچھا اضافہ ہے ARYQ-TV پر آپ کا ایز اے ہوسٹ. بہت کھلے دل سے ہم ویلکم بھی کرتے ہیں. جناب مجھے دیجیے گا اجازت اور اختتام کریں گے کلام پر. میری جانب سے تمام اہل ایمان کو ایک مرتبہ پھر عید الاضحیٰ کی مبارکباد. اللہ 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 رب مجھ کو بلائے گا, میں کعبے کو دیکھوں گا, وہ دن بھی تو آئے گا, میں کعبے کو دیکھوں گا, رب مجھ کو بلائے گا, میں کعبے کو دیکھوں گا, وہ دن بھی تو آئے گا, میں کعبے کو دیکھوں گا, رب مجھ کو بلائے گا. مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے, مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے, مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے, اللہ کی رحمت سے, وہ حج پہ بلائے گا, میں کعبے کو دیکھوں گا, وہ دن بھی تو آئے گا, میں کعبے کو دیکھوں گا. اللہ 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 اللہ, میں کعبے کی چادر کو ہاتھوں سے پکڑ لوں گا, میں کعبے کی چادر کو ہاتھوں سے پکڑ لوں گا, ہاتھوں سے پکڑ لوں گا, دل میرا بھرائے گا, میں کعبے کو دیکھوں گا, وہ دن بھی تو آئے گا, میں کعبے کو دیکھوں گا, رب مجھ کو بلائے گا, میں کعبے کو دیکھوں گا, وہ دن بھی تو آئے گا, میں کعبے کو دیکھوں گا, رب مجھ کو بلائے گا. کن سانسوں کے رکنے سے اور موت کے آنے سے, ان سانسوں کے رکنے سے اور موت کے آنے سے, اور موت کے آنے سے, وہ پہلے بلائے گا, میں کعبے کو دیکھوں گا, وہ دن بھی تو آئے گا, میں کعبے کو دیکھوں گا. اللہ
अल्लाह 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 अल्लाह